کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ کے لیے آج جو میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں یہ حقیقتاً ڈاکٹر عمران فاروق کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں۔ ان کے مرڈر سے پہلے انہوں نے کیا کیا باتیں کی، کیسے کیسے باتیں کی، کیا کیا انفارمیشن انہوں نے دی، وہ آپ کے سامنے سلائیڈوں کے ذریعے ایک ایک کر کے میں پیش کروں گا، ساتھ ڈسکس کروں گا، اور میں آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ ان کے اوپر ٹھنڈے دل سے سوچئے، سمجھیے اور دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا سے تو رخصت ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے رخصت ہونا ہے۔ کیسے ہونا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی منظور ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، جتنی بھی طاقت ہو اسی حساب سے اٹھانی چاہیے۔ ڈاکٹر عمران فاروق اگر جو انہوں نے انفارمیشن دی، جو باتیں کی، اگر کاش وہ اوپنلی کسی پلیٹ فارم پہ بات کرتے تو آج وہ زندہ ہوتے۔ الطاف حسین ہمیشہ، جو لوگ بھی شہید ہوئے، ہمیشہ یہ کہے گا کہ اس نے اپنی قربانی دی۔ حقیقت میں وہ قربانی دیتے کوئی نہیں ہے، الطاف حسین خود قربانی لے لیتا ہے۔ وہ قربانی لے کر پھر اس کو بعد شہیدوں کے قبرستان کی خوبصورتی بنا دیتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کتنے لوگوں نے، چاہے وہ قربانی کہہ لیں، چاہے وہ شہادت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کیا الطاف حسین نے کبھی بھی 2 پیسے کی بھی قربانی دی ہے؟ اس چیز کو بھی سوچئے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر۔ ایپیسوڈ 2 اور 1 بائی 1 سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کے اوپر سوچئے گا۔ اور چند الفاظ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے۔ Scotland Yard, today I am giving very important informations, and these informations are the real statement of Dr. Imran Farooq before his murder. You might, if you think, you may take these information as an evidence and you may utilize them. These information are in shape of slides and they are in English, but I am going to talk in Urdu to my viewers as they understand Urdu. ناظرین، آپ نے 2 پوائنٹ دیکھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ڈاکٹر عمران فاروق نے خود کنفرم کیا کہ بہت سارے متحدہ کے سینئر اسپیشلی لیڈرشپ بہت سارے ہینیس اور امورل ایکٹس کے اندر انوالو ہیں۔ اس پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے اور ان کو اوپر طنز بھی کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستان سے کیوں آیا، یہ پاکستان میں رہتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اس کے علاوہ سینئر لیڈرشپ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایپیسوڈ 1 کے اندر آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو وہیں سے تنخواہ دے دی جائے گی۔ لیکن حقیقت کچھ ایسے تھی کہ ڈاکٹر عمران فاروق ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اپنی خود کمائی کرنے کا سوچا، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کا سوچا اور اس کے حلال کمانے کی سوچی۔ وہ حرام سے دور جانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ الطاف حسین جو کہ بیچلر آف فارمیسی، ہمیشہ اسی کو ایسے اجاگر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑی ڈاکٹریٹ کی تھی۔ ڈاکٹر عمران فاروق حقیقت میں مکمل ڈاکٹر تھے اور وہ کام کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کام کیا اور کام سے ہی آتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک پارٹی بناتا ہے، اس کے لیے دن رات کام کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی، جب وہ مقصد سامنے نظر نہ آ رہا ہوتا اور وہ لیڈرشپ
जिसके लिए उसने कुर्बानियां दी उसको किसी और रंग में देख रहा हो तो इंसान वैसे ही अपने आप में मारा जाता है। डॉक्टर इमरान फारूक इसी वजह से वो चुप रहे, ओपन मीडिया में नहीं बोल सके कि क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं, कि किस मकसद के लिए हमने पार्टी शुरू की थी, आवाम को हम क्या बताएं। जब पीर साहब की बात हुई तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी तरफ सिर्फ ये इशारा किया कि मेरी तरफ देख लो, मुझे भी पीर साहब से कैसे दूर हटाया गया। ये पॉइंट वो है जिससे ये सोचा जा सकता है कि क्या सो कॉल्ड पीर साहब खुद अपनी मर्जी से चलते हैं या वो किसी जंगल में फंसे हुए हैं और उनको चलाने वाला कोई और माफिया है। नाजरीन, मैं पहले भी एक दफा बोल चुका हूँ लैंड माफिया के बारे में और मजीद इसके ऊपर एक एपिसोड स्पेशल बनाया जाएगा जिसमें आपको एक एक चीज बमै एविडेंस के बताया जाएगा कि मुतहदा किस दर्जे की और किस लेवल तक ये लैंड माफिया के अंदर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट जो मफाद परस्त ग्रुप है वो बड़े हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व है। कुछ लोग लंदन में बैठे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, इवन गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं और उनको किस तरीके से बेचते हैं। आपने देखा है कि सिविक सेंटर के अंदर कौन कौन से लोग बैठे हैं, सारे के सारे वो लोग हैं जो सफारशी इन्होंने खुद बैठाई ताकि इनका काम हो सके। मेरे पास ऐसी एविडेंस है, ऐसी वीडियो है जो कि इस एपिसोड के अंदर तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड बनेगा जिसमें आपको मैं एविडेंस दिखाया जाएगा। डॉक्टर इमरान फारूक इस चीज के बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने देखा कि जमीनें बिक रही हैं, पैसा आ रहा है और पैसा फर्दर कहाँ जा रहा है, ये सारा कुछ उनकी नजर। डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की कि वो शायद कायल कर लें अल्ताफ साहब को, लेकिन अल्ताफ साहब ठस से बस नहीं हुए। नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि मोहम्मद अनवर और सलीम शहजाद के अंदर वो कौन सी खूबी थी जिसकी बिना पे ये हमेशा से अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन जैसे अजीम अहमद तारिक, एहसन तारिक, डॉक्टर साहब और बहुत सारे दूसरे जिन्होंने बहुत काम किया मुतहदा के लिए, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको साइडलाइन कर दिया गया और उनको मार दिया गया। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि सलीम शहजाद क्या था और आज क्या है। मोहम्मद अनवर वो तो वैसे ही इंडियन था, उसकी बैक औकात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो लंदन में आया उससे लेकर अब तक का मुझे एक एक चीज का इल्म है कि वो शख्स इंतहाई मफाद परस्त, रॉ के लिए काम करने वाला और अपने रिलेटिव्स को भी सेटल करने वाला। चुन्नू मुन्नू जो भी उसका भाई है कराची के अंदर, वो कराची में कैसे सेटल हुआ ये तो अल्ताफ साहब बता सकता है या उसका माफिया बता सकता है। लंदन से एक कॉल पे जिसको मेयर बना दिया जाए और उसके बाद दुबई के रास्ते हवाले के जरिए कैसे कैसे पैसे आए। खुदारा, मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये डॉक्टर इमरान फारूक के अल्फाज हैं। ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये उनकी है। सोचिए, समझिए और इसकी तहकीक कीजिए, जो आपको खुद मिल जाएगा। आपने ये तो पॉइंट देखे, ये किसको नहीं पता कि सलीम शहजाद दुबई के अंदर क्या करता रहा है और अभी भी वहां पे क्या कर रहा है। कराची के अंदर जो भी क्राइम, मर्डर,
बैंक रॉबरीज, हर किस्म का जो क्राइम जब अल्ताफ हसन बज़ाते खुद पाकिस्तान में था, उस वक्त भी सलीम शहजाद की सुपरविजन में सब कुछ होता था। और यही वजह है जो मेरी सोच है, और यही वजह है कि सलीम शहजाद लंदन में भी आके उसने अपने माफिया को अपने पास बुला लिया। कुछ लड़कों को दुबई में, कुछ लड़कों को साउथ अफ्रीका में, और बहुत सारों को लंदन में असाइलम दिलवाई। क्यों वो राज करना चाहता है, वो क्यों सारा कुछ कंट्रोल करना चाहता है, और उसको क्यों कंट्रोल करने दिया जाता है। आपने शायद मेरा आर्टिकल अखबार में पढ़ा होगा जिसमें मैंने कहा था कि सलीम शहजाद अल्ताफ हसन की अय्याशियों का सामान मुयस्सर करता है। जाहिर है वजह थी जिसकी बिना पे हर किस्म का माल उसबात इकट्ठा करना, ट्रांसफर करना सलीम शहजाद को अलाउ है। और सेम वे मोहम्मद अनवर, ये तमाम मिलके एक माफिया किसी बलबोते पे चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, ये तो उसी वक्त मुमकिन है जब ये कानून के शिकंजे में आएंगे, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएगा। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। डॉक्टर साहब ने जितनी कुर्बानियां मुतहदा के लिए दी वो तमाम लोगों के सामने है। देखिए, एक शख्स जो अभी मुतहदा से बाहर है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहा है या छोड़ने के लिए जा रहा है। सलीम शहजाद और मोहम्मद अनवर ये क्या क्या कमेंट्स देते रहे, गद्दार और क्या क्या, कुछ सोचिए। ये आप लोगों को खुद पता है कि डॉक्टर साहब ने किस लेवल तक, किस ग्रेड तक जाकर उन्होंने काम किया। बीइंग अ डॉक्टर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन के लिए बहुत काम करते रहे। क्या अल्ताफ हुसैन को जरा भी ख्याल नहीं आया, जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो शख्स जिसने हकीकी में बहुत कुर्बानियां दी हैं, बढ़ चढ़ के काम किया, उसकी ये उसने कदर की। आज वो 59 इयर्स की सालगिरह मना रहा है। मैं अल्ताफ हुसैन से ये पूछना चाहता हूं कि इंसान की कितनी जिंदगी होती है। तुम 59 साल के हो गए, कितने और साल जी लोगे। लोगों से हमेशा कुर्बानियां कुर्बानियां मांगते हो। कभी 2 पैसे की, जान तो बहुत दूर, 2 पैसे की भी कुर्बानी दी तूने। कितने फख्र से कढ़ाई वाले जैकेटें, टी शर्टें, अय्याशियां करते हो। कभी ज़मीर ने आवाज नहीं दी कि ये पैसा कहां से आ रहा है। हमेशा मफाद परस्ती का काम किया। यानी कि ईद पर कितना फतराना, अरबों में पैसा इकट्ठा किया। अब मजदूर जो शहीद हुए फैक्ट्री की आग में, अफसोस आपने बाद में किया, सबसे पहले लोगों से चंदा और देने का कहा। तो ये क्या है? वो पैसा जो ईद पे इकट्ठा किया गया था वो कहां गया? वो कहां गया? इसका कौम को जवाब चाहिए। आपने हमेशा कौम को धोखा दिया, फ्रॉड किया, फरेब किया। और अगर थोड़ा सा भी ख्याल होता डॉक्टर साहब के बारे में, तो कम से कम उन बेचारों के ये नौबत ना आती कि टिफिन हाथ में पकड़ा, प्लास्टिक का लिफाफा हाथ में पकड़ा, फुटपाथ पे चलते चलते कहां से चलते कहां घर पहुंचे, और एक दिन छुरियां मार के उनको शहीद कर दिया गया। मैं अपने वीडियो के लास्ट में अल्ताफ हुसैन से चंद एक सख्त सवालात पूछना चाहता हूं, क्योंकि बरसी अपनी सालगिरह के साथ उन्होंने मनाई। इसी तरह जैसे मोहम्मद अनवर की सालगिरह, अजीम अहमद तारिक शहीद
के साथ मनाई जाती है। ये इत्तेफाक की बात है या प्लानिंग की बात है कि जब अनवर की सालगिरह है तो अजीम अहमद तारिक साहब की बरसी है, अब डॉक्टर साहब की बरसी है तो अल्ताफ हुसैन की 7 सालगिरह है। अल्ताफ हुसैन, आपको बहुत दुख था, आपने बहुत रोया, इतना रोया कि बाल्टियां भर गईं, आपके आंसुओं से सैलाब चल पड़े। क्या डॉक्टर साहब की डेथ से 2 साल पहले की कोई चंद एक तस्वीर या वीडियो अब आपको पेश करेंगे? क्या आपने उनको कभी भी मैं फैमिली या अकेले अपने घर खाने पे बुलाया हो? ये वही डॉक्टर साहब हैं जो पाकिस्तान में जिनके बगैर आप खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन लंदन में क्या आपने उनको उनके आखिरी 2 सालों में अपने पास बुलाया, कभी दावत मदू किया किसी चीज में? तीसरा मेरा सवाल है जिसका कौम को जवाब चाहिए, मोहम्मद अनवर कौन है? वो आपको इतना प्यारा क्यों है? सलीम शहजाद आपको इतना प्यारा क्यों है? और यहाँ पे नाजरीन के लिए सोचने के लिए कुछ चीजें मैं उनको भी कह रहा हूँ कि नाजरीन, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सियासी पार्टी के दफ्तर में जुए की मशीनें नहीं लगी। लंदन सेक्रेटरीट के अंदर जुए की मशीन लगी हुई है। आप जुर्रत करेंगे अल्ताफ हुसैन से पूछना कि ये मशीन क्यों है? कोई भी मुतहदा का लीडर आके बताए। मैं लास्ट पे अपनी बहन शुमाइला इमरान, डॉक्टर इमरान फारूक के वालिद, उनकी वालिदा से बहुत ज्यादा इजहार अफसोस करता हूँ, और ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह उनके कातिलों को पकड़ने में जहां तक भी मुमकिन हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा, और इंशाअल्लाह एक दिन वो पकड़े जरूर जाएंगे, और वो ज्यादा देर नहीं, इंशाअल्लाह ये चंद दिनों या हफ्तों की बात है। नो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्कॉटलैंड यार्ड, प्लीज इन्वेस्टिगेट अबाउट मुस्तफा कमाल एंड अनीस कायम, as they have been visiting regularly to London just after the murder of Dr. Imran Farooq. They never and ever visited London. Can you please find out why? What are the reasons why they are not coming? Today I am going to end my video with the hope that the victimized family of Dr. Imran Farooq will soon be getting the justice. Inshallah, I will also try my level best to cooperate to the extent which I could do. Thank you very much.